हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातों से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज अगेन हम चलते हैं जॉर्डन पीटरसन के पास। वो एक सब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं कि कौन सी जॉब आपको सूट करती है, जो कि शायद कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके लिए रेलेवेंट ना हो ये चीज़, अगर उसने खुद से ही 100% फिगर आउट नहीं कर लिया। क्योंकि आई गेस हम सब ही कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस डिलेमा में होते हैं कि यार क्या करना चाहिए मुझे लाइफ में, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर कोई इंसान है जिसने कभी ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा, भाई वीडियो गेम खेलनी थोड़ी कम कर दो, फिर शायद हो सकता है। एनीवे, वीडियो की तरफ चलते हैं और साथ साथ बात करेंगे। First of all, you need to know them for your own life, because you got to know that there are differences in intelligence. It's really important. If you go into a job and you're not smart enough for that job, you're going to have one bloody miserable time, and you're going to make life wretched for the people around you because you won't be able to handle the position. And as you climb hierarchies of competence, the demand on fluid intelligence increases. And so, unless you want to fail, you don't put yourself in over your head. Well, what's over your head? Well, that's a tricky thing to figure out. I mean, you have to figure that out with intelligence, you have to figure it out with conscientiousness, you have to figure it out with creativity, you have to figure it out with stress tolerance, with agreeableness, because you want to go into a cooperative environment and not a competitive one if you're agreeable, and with neuroticism, you probably want to keep the stress level of your job relatively low, because those are all places that you can break down. And most people have at least one significant weakness in their intelligence personality makeup, and you got to be careful not to place yourself in a position where that's going to be a fatal flaw. But what सो कीवर्ड है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस। इन सारी ही चीज़ों को अपने बारे में सही तरह से जानने के लिए, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है लाइफ में सो फार, मैंने ये रियलाइज़ किया कि बंदे बहुत ज़्यादा अपनी खुद के बारे में, अपने आप को नहीं जानते होते। और शायद ये किसी ना किसी हद तक मेरे लिए भी ट्रू। हम सब ही अपने आप को पूरी तरीके से तो क्या, जितना जानना ज़रूरी है उतना भी नहीं जानते होते अपने आप को, अपनी अच्छाई की कैपेबिलिटी और साथ ही अपनी बुराई की कैपेबिलिटी। हम किसी न किसी चीज़ में अपने आप को ज़्यादा आँक रहे होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और किसी चीज़ में अपने आप को ज़रूरत से कम आँक रहे होते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में जो हमारे अंदर है, हमने शायद सोचा ही नहीं होता कि वो हमारे अंदर एग्जिस्ट भी करती हैं। और ये हम सब के लिए टू सम एक्सटेंट ट्रू है, बट जितनी ही कर लो उतनी कम है सेल्फ अवेयरनेस। और इन्होंने अभी तो जितनी बात बोली है उस चीज़ को हिट करने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। वरना हम सब कभी ना कभी लाइन में लगे होंगे, और जो क्लर्क या बैंक में जो ऑफिसर है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा आपसे आगे वाले के लिए, और वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा होगा ज़रूरत से ज़्यादा, आप देख रहे हो यार जल्दी टाइप कर ले, कुछ कर ले, तेरे को आता नहीं तेरा काम। तो उस वाली सिचुएशन में हम सब एंड अप हो सकते हैं कभी ना कभी। What you really want to do, as far as I can tell, if you want to maximize your chances for both success and let's say well-being, is you want to find a strata of occupation in which you would have an intelligence that would put you in the upper quartile. That's perfect. Then you're a big fish in a small pond, and you don't want to be the stupidest guy in the room. It's a bloody rough place to be. So, and you probably don't want to be the smartest guy in the room either, because what that probably means is you should be in a different room, right? You should look at a place where, if you're right at the top, you've mastered it. It's time to go somewhere where you're a little lower, so that you've got something to climb up for. So, and like, if you're not hyper conscientious, for example, you're probably not going to want a job that you have to work 70 hours a week at, because you're just not wired up that way. You'd rather have some leisure, and like, more power to you. If that's how you're wired up, there's nothing wrong with having some leisure. But if you're someone who can't stand sitting around doing nothing ever, then maybe you can go into a job that's going to require you to work 75 hours a week. And almost all jobs that are at the top of complex dominance hierarchies require very high intelligence and insane levels of conscientiousness, as well, generally speaking, as pretty damn high levels of stress tolerance. You know, because that. Okay, so थोड़ा सा जूस अगर हम इसमें से निकालना चाहें इस चंक ऑफ टॉक में से, तो वो ये होगा कि आप जैसे भी हो, इस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर आप ऐसे क्यों हो या वो क्यों हो, या आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सोसाइटी इस तरीके से बनी है, ह्यूमन रियलिटी के साथ साथ जो इसके लफड़े हैं, बट इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है, जो कुछ फ़ायदे हैं, कि हम सब के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह है। तो
जिस हिसाब से भी आप डिज़ाइंड हो, जिस हिसाब से जो आपका नेचुरल तरीका है, उस पर विशफुल होने की जगह कि काश में ऐसा ना होता, काश में किसी और तरह का होता। शायद अपने सिचुएशन के हिसाब से लाइक व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड तो वो वाला सीन आई थिंक निकल के आ रहा है इस बात से. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन. That can knock you out too, because there's going to be sharp fluctuations in your career, generally speaking, at the higher levels of a structure, and you have to make very complicated decisions, often with very short time horizons. So you have to decide if that's what you want. So, okay, so how smart do you have to be different things in life? Well, if you have an IQ of 116 to 130, which is 85th percentile and above, so it's one person in 8 up to one person in 130, I believe is 85, 90, 95, is it 95? I think it's 95. One person in 8 to one person in 20. Then you can be a attorney, a research analyst, an editor, an advertising manager, a chemist, an engineer, an executive manager, etc. That's the, now, that's not the high end for IQ, by the way. That it can go up. आई थिंक 132 के बाद इंसान कंसीडर होने लग जाता है कि आई मीन जीनियस वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि जीनियस और मैं ज़्यादा गिराना नहीं चाहता उस वर्ड को जितना वो गिरा हुआ है पहले से ही. अंडर रेट नहीं करना चाहता. लेकिन एनीवे एक स्मार्ट पर्सन, लाइक रियली स्मार्ट इंसान 132 के बाद काउंट होना शुरू हो जाता है. और आई थिंक उससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद जीनियस के IQ का लेवल स्टार्ट हो जाता है. आई मीन जो मेरा कहने का मतलब है 132 एक बहुत सुपर डिसेंट ग्रेट IQ है होने के लिए, या उससे ऊपर. Well, it can go up indefinitely, although there's fewer and fewer people as it goes up. So if you want to be the best at what you're doing, bar none, then having an IQ of above 145 is a necessity, and maybe you're pushing 160 in some situations, and maybe that's making you one person in 10,000 or even one person in 100,000. And then also, to really be good at it, you probably have to be reasonably stress tolerant and also somewhat conscientious. So, people, you think, well, why is it that smart people are at the top of dominance hierarchies? And the answer to that, in part, is because they get there first, right? I mean, everything's a race, roughly speaking. And the faster you are, the more likely you are to be at the forefront of the pack. And intelligence, in large part, is speed. That's not all of it is. So if you're moving towards something difficult rapidly, the faster people are going to get there first. So IQ of 110 to 115, so that's 85th to 70. इसका कोई एग्जांपल जो उन्होंने कहा उसकी मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों सुपर स्मार्ट पीपल हायरार्की में सबसे ऊपर चले जाते हैं. क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा तेज़ होते हैं. तेज़ मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तेज़ है स्मार्ट होने का. और तेज़ मतलब जो इन्होंने एग्जैक्टली कहा वो कि वो तेज़ है तो वो पहले पहुंच गया. पर उसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि देखो इंटरनेट आया. इंटरनेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज़ अ सर्च इंजन. ठीक है, सबसे पहले याहू एज अ सर्च इंजन आया, गूगल उसके बाद आया, लेकिन गूगल फिर भी ऊपर चला गया. क्यों? ये आई थिंक एक्सेप्शंस, यानी कि ये इस रूल का एक एक्सेप्शन है जो इन्होंने बताया अभी. बट मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक उसका बेटर एग्जाम्पल होगा अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ द फर्स्ट सीरियस कंपनी जो कि ई मार्केट ई बिज़नेस में आए. बुक्स सेल करने से स्टार्ट किया था उन्होंने. आई होप आप सबको पता ही होगा, जेफ बेजोस ने. और वो आज टॉप ई-कॉमर्स कंपनी है, और वो वन ऑफ द अर्लीस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है. ईबे, आई डोंट नो ईबे पहले स्टार्ट हुआ था अमेज़ॉन, लेकिन अमेज़ॉन क्वाइट अर्ली स्टार्ट हुआ था 98 के आसपास. तो या अमेज़ॉन आई थिंक उसका एक अच्छा एग्जांपल है कि स्मार्ट, जेफ बेजोस वाज अ स्मार्ट गाय. ही कुड सी दैट इंटरनेट कुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ मार्केट, और उसने वो सबसे पहले देख लिया और उस राह पे पहले निकल गया. 23rd to 85th percentile. Copywriter, accountant, manager, sales analyst, general manager, purchasing agent, प्रोग्रामर बनने के लिए registered सिर्फ nurse, इतनी sales कम account IQ चाहिए होती है. If you look at universities, the smartest people they're above this. Who are the smartest people at university? Professor. Me. Mathematicians, physicists, and mathematicians, right? Specific Right. type of professor. I can tell you who's on the other end, but I won't.
खेलिए लड़के. Yeah, I'd like to though. Anyway, anyways, okay. सही Going सही. down the now 103 to 108 is slightly above अगर किसी को जोक समझ में नहीं आया तो ये ह्यूमैनिटीज़ के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट की बात कर रहा है. average, right? 60th to 70th कर रहा है. percentile. Store manager, bookkeeper, credit clerk, lab tester, general sales, telephone sales, accounting clerk, computer operator, पुलिस customer वाले की तो service बिल्कुल ही rep, गिरा दी. technician, clerk, typist. So you see, at this level, people have some technical skill and some ability to deal with complex things. Okay, that's dead average. 100 is average. Dispatcher in a general office, police patrol officer, receptionist, cashier, general clerical. यार ये कितने अफसोस की बात है कि पुलिस पेट्रोल ऑफिसर की 100 IQ में ले लेते हैं. आई मीन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंस ऑल्टरकेशन हो जाते हैं पेट्रोल ऑफिसर्स के साथ लोगों के. बहुत USA में तो खैर पुलिस शूटिंग उन्हीं ऑल्टरकेशंस के का एक कम आउट होती है. तो ये क्या एक वजह हो सकती है कि Inside Risky. sales clerk, meter reader, printer, teller, data entry, electrical helper. 95th to 98. Machinist, food department manager, quality control checker, security guard, unskilled labor, maintenance, arc welder, die setter, mechanic. Good IQ range for relatively qualified tradespeople. 87 to 93. Messenger, factory production worker, assembler, food service worker, nurse's aide, warehouseman, custodian, janitor, material handler, packer. Now, what you're starting to see is that as you move down the hierarchy, the jobs get simpler. They're more likely to be assigned by other people, or they're repetitive. Because what IQ predicts to some degree is how rapidly you can learn something, but once you've learned it, it doesn't predict necessarily how well you do at it. So the more repetitive jobs people with lower IQs are more suited to more repetitive jobs. Under 87, is there something? Well, आज की लाउड गाड़ी. ओह शिट, आज तो कुछ ज़्यादा ही लाउड है. no. Right. That's a big problem. And it's something our society has not addressed. ओके बाय द वे ये सारी चीज़ें ना नॉट रिटन इन स्टोन नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई हाई IQ का बंदा कोई पैकर की जॉब नहीं कर रहा होगा. पर्सनल प्रेफरेंसेस और लाइफ की सिचुएशंस भी डिपेंड करती हैं. तो ये एक बहुत जनरल आइडिया है. इस बात को सोचना. At all. Jobs for people with IQs of less than 85 are very, very rare. So what the hell are those people supposed to do? It's like it's 15% of the population. What are they supposed to do? Well, we better figure it out, because one of the things that's happening too is that as the high IQ tech geeks get a hold of the world, the demand for cognitive power is increasing, not decreasing, right? You want to be a teller? Yeah. Well, those checkout machines, they're not so simple. You want to work at McDonald's? You think that's a simple job? You don't see robots working at McDonald's. And the reason for that is that what McDonald's workers do is too complex For a machine. for robots to do. So this is a discussion that no one wants to have, but that's okay. It's still a problem. It has to be dealt with. So the U.S. government, I think I told you this at Problem one doesn't point go already, away like that. it's illegal to induct anyone into the U.S. Army if they have an IQ of less than 83, right? It's about 10% of the population. Because the U.S. Army, and they've been doing IQ testing since IQ testing began, because they want everybody they can possibly get into the Army, because in peacetime, they use it as a way of moving people up the socioeconomic ladder, and in wartime, well, obviously, you need as many soldiers as you can get your hands on. And so you're not going to be any pickier than you have to be. So when the U.S. Army says it's illegal to induct anybody into the armed forces if they have an IQ of less than 83, then you know that they've done it for absolute necessity. Yeah. Right? And when लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, आर्मी में एक बहुत सॉरी हार्श वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेवकूफ़ या जिसकी अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी ना हो, ग्रास्प करने की, क्विक ग्रास्प करने की कैपेबिलिटी ना हो, वो सिर्फ अपने लिए डेंजर नहीं बन सकता, वो शायद अपनी टीम के लिए भी डेंजर बन सकता है, अपने साथ वालों के लिए भी डेंजर बन सकता है. तो उनको एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करना ही था कि जिसके बाद अगर हम किसी को लेते हैं तो ये एसेट की बजाय लायबिलिटी बन जाएगा या फिर खतरा तक बन जाएगा. जस्ट नॉट जस्ट लायबिलिटी, डेंजर बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस दैट
those people might face on a battlefield. और साथ ही साथ यार ये कितना इंटेलिजेंट आइडिया इस छोटे से सेंटेंस में या चंक ऑफ टेक्स्ट में आपको समझ में आ सकता है कि अमेरिका में वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ जनरेशन या वेल्थ स्प्रेड करने का कितना अच्छा तरीका ये है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन पीस टाइम टू मूव पीपल अप द सोशल लैडर या फिर अप द इकोनॉमिक लैडर, राइट। तो कोई बंदा आर्मी में आया पीस टाइम में, फॉर एग्जांपल, एक उसकी स्पेसिफिक सैलरी, पर्टिकुलर सैलरी हो गई, ठीक है, सेट अमाउंट, वो उसको आएगा ही आएगा। आर्मी उसको डिसिप्लिन प्रोवाइड कर देगी, एक लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन, एक टाइमिंग प्रोवाइड कर देगी, चीज़ों को टाइम से करने की आदत प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो पैसे की कंटिन्यूस सप्लाई, कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, और बहुत मेजर परसेंटेज है उस चीज़ का जो कि पूरी की पूरी एक फॉर्मूला चाहिए होता है आपको लाइफ में स्टेबल सक्सेसफुल जीने के लिए। उसके बाद अगर उस इंसान की सिर्फ इच्छा है ना कि मैं ढंग से जीवन जीऊँ और मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए थोड़ी सी वेल्थ छोड़ के जाऊँ या एटलीस्ट थोड़ा पैसा या कैपिटल छोड़ के जाऊँ, तो वो कर सकता है। इनफ पैसा वो देते हैं जिससे कि आप अपने आप को सस्टेन कर सको, कुछ प्रॉपर्टी बना सको और कुछ सेव भी कर सको। क्योंकि साथ में ये देखो कि आर्मी ने डिसिप्लिन भी प्रोवाइड किया हुआ है, उसके अलावा आर्मी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो ये कितना और अगेन फिजिकली ट्रेंड आप हो गए, जिस वजह से कि मोर लाइकलियर देन नॉट आप मेडिकल ट्रबल्स से भी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेफ हो गए। आप मोर लाइकलियर देन नॉट ओवरवेट नहीं होगे, ठीक है। फिजिकली फिट हो गए, कोई कुछ सिचुएशन आ जाती है अनफोर्सीन, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो हर तरह से पॉपुलेशन की जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इन्हेंस हो रही है। ये समझने वाली बात है कि कैसे उन कंट्री की जस्ट पॉपुलेशन की क्वालिटी बेटर हो जाती है कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके। People have made a finding that contradicts what they want to hear, and they're doing it out of absolute necessity. You can be reasonably true that it's one of those facts that just won't bloody well go away. And so you might think, well, if there's nothing for someone with an IQ of less than 83 to do in the army, what makes you think that there's something that they can do in the general population? And then the issue is, because the conservatives will say, well, they should just work harder. It's like, sorry, that ain't going to fly. And the liberals will say, well, there's no difference between people anyhow, and you can just train people to do everything. And that's wrong. So they're both wrong, and they're seriously wrong. And the fact that neither side of the political perspective will take a good, cold, hard look at this problem means that we're going to increasingly have a structural problem in our societies, because we're complexifying everything so rapidly that you can't find employment unless you're intelligent. You guys are really going to face this, Lawyers are disappearing like mad. And the reason for that is, you can look it up online. Increasingly, you can do things yourself if you're smart. And so, like, the working class people have been wiped out pretty nicely over the last 30 years by automation and various other things. It's the low end of the white-collar class that's coming up next. So I'm not saying that lawyers are in the low end, but low-end lawyers are in the low end. क्या हो गया भाई, बिजली गिर गई क्या? Of the white-collar class. So there's still going to be plenty of positions for people who are creative and fast on their feet and super smart. In fact, those people are going to have all... अबे क्या ये यार, सॉरी यार, मैं एक खास ज़बरदस्त जगह पे रहता हूँ. The money. That's already happening to a great degree. First of all... Anyway, या पता नहीं यार क्या होगा उन लोगों का, क्योंकि मैं सोच रहा था जब ये बात कर रहे थे कि क्या उनको किसी पैकिंग फैसिलिटी में लगाया जा सकता है जहाँ बस सामान लो और पैक करो. पर फिर मेरे दिमाग में आया कि अमेज़ॉन वेयर हाउसेस में आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि लोगों को जल्दी से जल्दी काम करने के लिए पुश किया जाता है, जिसकी वजह से कि अब्यूज़ के केस होते हैं कि आप वर्कर का अब्यूज़ कर रहे हो. तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी ही डेफिशिएंट IQ का है तो उसकी स्पीड और स्लो होगी और वो पूरे के पूरे सिस्टम को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से कंपनी उसे एंड ऑफ द डे फायर कर देगी. मुश्किल है यार. आई थिंक
या तो कुछ ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक प्लान लाने होंगे उन्हीं लोगों के लिए, या उनको किसी ना किसी तरीके का मॉनिटरी लाइक सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। या अगर गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ ढूंढ सके लाइक बिल्कुल बेसिक लेबर जॉब, लाइक जैसे इंडिया की अगर बात करें तो एक स्कीम है मनरेगा, जिसमें कि बस खुदाई करने के लिए जो लोग खाली बैठे हैं उनको काम दे दिया जाता है और एक मिनिमम जॉब दे दी जाती है। खुदाई करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए उसके लिए, फिज़िकल हार्डीनेस चाहिए आई गेस, स्पेशली इंडिया में जब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है उस टाइम पे। मनरेगा, आई थिंक मनरेगा ही नाम है उस स्कीम का, क्योंकि इंडिया भी उस जगह पे नहीं पहुंचा है जहां लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट पे की जा सके, एक अमाउंट जो कि घर बैठने के लिए लोगों को, घर बैठे हुए लोगों को पे किया जाता है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। पेंशन नहीं, पेंशन उन लोगों को पे की जाती है जो रिटायर हो गए होते हैं। या तो एक प्रॉब्लम है ये, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जो इन्होंने कहा कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि जो लोग इंटेलिजेंस में थोड़े से डिफिशिएंट हैं उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज एक गांव में बैठे हुए एवरेज अंकल जी को भी कंप्यूटर चलाने आता है कैसे, जो कि 20 साल पहले तक नहीं था। कंप्यूटर कैसे चलाने आता है? हमारे हाथ में जो छोटे छोटे स्मार्टफोन्स हैं, ये एक्चुअली आज से 10-15 साल पुराने कंप्यूटर से ज़्यादा केपेबल हैं। एक एवरेज फ़ोन में 100 GB के आसपास मेमोरी होती है। जब मैंने पहला अपना कंप्यूटर लिया था 2008 यानी 6 में शायद, उसकी 80 GB की हार्ड डिस्क थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो जो हमारे हाथ में छोटे छोटे स्मार्टफोन्स हैं, ये अपने आप में कंप्यूटर हैं, 15 साल पुराने कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल, जो बहुत और हर तरह के टास्क कर सकते हैं। यार क्या है ये? और हर बंदा उसे ऑपरेट कर रहा है, पेटीएम चला रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें देख रहा है, कैमरा यूज़ कर रहा है, उसका डिफरेंट तरीके से अपने काम कर रहा है। तो लोग स्किल्स में ऑटोमेटिकली बिना रियलाइज़ किए भी ऊपर जा रहे हैं, और आई थिंक मार्केट एडजस्ट हो जाएगी जॉब्स के लिए। आई डोंट नो कैसे ये प्रोसेस कैसे काम करता है, लेकिन जनरली देखने में आता है कि ये हो ही जाता है, अकोमोडेट हो जाते हैं लोग। इकोनॉमी ग्रो होती रहनी चाहिए बस। बाकी देखते हैं आगे जाके। तो अपने आप को सेल्फ इंस्पेक्ट कीजिएगा, सेल्फ रियलाइजेशन, किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ में आपका नेचर मैच करता है, और उस हिसाब से अपने लिए क्या करना है लाइफ में वो डिसाइड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।